And for those of you who are looking for classes, you can get in touch with me and we will devise a tutoring sessions. one-on-one personalized sessions भी available है, अगर आप चाहो तो वो भी avail कर सकते हो. Description के अंदर links मिलेंगे, through that you can directly get in touch with me. Otherwise you can use some of the QR codes and stuff that you see on your screen also from time to time in this video. Having said that, let's go into this video. So what does it say? There is a bar chart. Okay, there is a bar chart. Let's try to analyze the bar chart a little bit. So it says that there is a person called Ramesh and he spends his yearly salary on 2 types of expenses and saves the remaining amount. So he has particularly 2 expenses and then he saves the rest of the amount. What exactly is his salary? So if you read the graph, this is for year 1, year 2, year 3, year 4. And these are your numbers. They are definitely in thousands. दो चीजें यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर दूं. First thing is that I'll zoom in when is necessary. Right now I think you guys can see it very clearly. Other than that, we have not any additional data, nothing. बस question है और ये छोटा सा data है अपने पास. Let's read the questions. Question to question पढ़ते हैं. Let's try to solve this. First question says if a regular household expense as a regular household expense. Where is regular household expense? Regular household expense is this one. Okay, so these are regular household expense. If this exceeds as a percentage of salary कौन सा है? ये वाला है salary, the black, dark blackish one of the salary. So if the regular household expense as a percentage of salary exceeds 50%, then the living style in that year is said to be lavish. For Ramesh, the living style has been lavish in all the year except, मतलब आप समझ गए होंगे कि 50% से ज्यादा किसमें है और 50% से ज्यादा किसमें नहीं है. लेट्स सी दैट, है ना. सो फर्स्ट ईयर यू कैन सी इट इज 150 द सैलरी. सेकंड ईयर इट इज 160. थर्ड ईयर इट विल बी समवेयर ओवर देयर. सो व्हाट विल आई टेक? आई कैन टेक इट 130 मे बी, एंड देन दिस वन आई कैन टेक एट 100 एंड मे बी 70. ठीक है, होप दैट मेक सेंस. नाउ व्हाट इज द हाउस होल्ड? अब ये नंबर्स डिपेंड करेंगे कि आप इन नंबर्स को कैसे पिक करते हो. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी दिस वन आई कैन टेक एज 70. नाउ टेल मी वन थिंग, इस 70% का ट्वाइस विल बी कितना? 140. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट एक्सीडिंग 50%. ठीक है, या फिर अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो उसको ऐसे समझ लो कि 150 का 50% कितना होगा? 10% इज 50. 10% आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप एकदम बेसिक लेवल पे जाना चाहते हो. 10% इज 15, तो फिर 50% विल बी 75. ठीक है, या फिर इसका डायरेक्ट हाफ कर दो, 50% इसका आधा हो जाएगा 75. ठीक है, तो 70 इज डेफिनेटली नॉट एक्सीडिंग 50%. सो दैट मीन्स दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. सिमिलरली विदाउट इवन डूइंग कैलकुलेशन आप उसको थोड़ा ऑब्जर्व करके भी सॉल्व कर सकते हो. लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज 160 एंड दिस वन इज 90. सो 60 का 50% would be how much? 160 का, that is 80. This is definitely exceeding, तो ये lavish है. And this one you can take at 70. Okay, again you can do your calculation. This will be 130 का 50% will be 65. So this is also similarly. This again is at what? This is 90. ठीक है, 170 का half will be कितना होगा? 85 के आसपास. तो ये भी आपका lavish lifestyle में है. The only lavish lifestyle is not for year 1. So option number 1 will be our answer. Hope that makes sense. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, जहां पे आपको कैलकुलेशन करना है आप कैलकुलेशन करिएगा. जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन से बच सकते हो, वहां पे आप कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन से बचेंगे. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. What is the average? Now this I'm hoping that this will ask you to do a little bit of calculation. So this is asking you to calculate the average monthly saving of Ramesh over a given 4 year. Okay, for that we need saving. ठीक है, एंड सैलरी में से अगर मैं टोटल एक्सपेंस को माइनस करता हूं, इन चीजों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मुझको सेविंग्स का वैल्यू चाहिए. तो जो भी सैलरी है उसमें से मुझे टोटल सेविंग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसमें से मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. मेरे को एक वैल्यू मिलेगा एक्स वाई जेड और लेट्स से अल्फा, और इन वैल्यूज को मेरे को फिर कंपेयर करना है एवरेज निकालने के लिए. ठीक है, सो अगेन वी विल डू द सेम थिंग. व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू यूज द ग्राफ इटसेल्फ से हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. सो वी नो द फिगर, दिस इज 150 एंड
अगेन द प्रॉब्लम इन दीज काइंड ऑफ ग्राफ्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी बाउंड्री लाइन पे, जैसे यहां पे ये फिगर है, इसको आप 60 लोगे या क्या लोगे, क्योंकि 50 नहीं ले सकते तो आप, और इसको 60 भी नहीं ले सकते तो आप इसको 55 ले लो, और दूसरा वाला जो नंबर है वो तो डेफिनेटली 70 है. सो 150 minus 50 is 100, दिस इज 80, 80 minus 50 is 30, दैट इज 25. सो ये जो पहले वाले का है ये 25 निकल के आ रहा है सेविंग. ठीक है, मैं सेविंग की बात कर रहा हूं फर्स्ट ईयर में. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो इफ यू डू योर सिमिलर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस टू बी 25. दिस ओवर हियर इफ यू डू योर कैलकुलेशन यू गेट 5, and over here you get a 15. Now 25, 25, 5 and 15. So the average of this will be, how do we calculate average? 25 plus 25 plus 5 plus 15 upon 4. This is going to be my average yearly saving. So this is going to be 17.5. लेकिन इसने एवरेज ईयरली सेविंग नहीं बोला, इसने क्या बोला था, इसने बोला था एवरेज मंथली सेविंग, मंथली सेविंग. सो 17.5 को आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट विल गिव यू योर दिस थिंग. यूज योर कैलकुलेटर, दिस इज कैट. सो 1.45 का अप्रोक्सीमेट आपका नंबर आएगा. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर सोल्यूशन. होप दैट मेक सेंस. हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों को अलर्ट कर दूं कि हमारे लाइव सेशंस चल रहे हैं कैट के. अगर आप एनरोल करना चाहते हो कैट के लिए, वन ऑन वन पर्सनलाइज सेशंस के लिए, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस, मेंटरिंग, ट्यूटरिंग, रिसोर्सेस अगर आपको चाहिए तो आपको ट्राइडेंट क्लासेस में सारी चीजें मिलेंगी एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. We don't charge too much, we don't charge too less. It's a very affordable price for a reputed coaching that is getting offered. Hope that makes sense. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Now they are asking what is the average monthly salary of Ramesh over the 4-year period. सैलरी बोला है तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी. ये सैलरी, ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को खाली आपको कैलकुलेट करना है और इन नंबर को डिवाइड बाय 4 कर देना है. यू विल गेट द आंसर टू दिस. सो समटाइम्स यू सी ना दोस्तों, आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन ही मिलेगा. सो लेट अस कैलकुलेट दैट. सो फॉर द फर्स्ट वन वी हैव 150. अगेन फॉर द नेक्स्ट वन आई कैन टेक इट एज 155. दिस वन क्या लोगे, 30 तो नहीं, 135 ले लो. दिस यू कैन टेक एज 170. ठीक है, जस्ट ऐड देम and divide by 4. So when you add them, this will come out to be 610, and average monthly salary bola hai over the 4 period. So this is 152.5. This is your average of the 4 salaries. Now they are asking monthly, तो monthly के लिए 152.5 upon 12 करेंगे. Again use your calculator. Roughly 12.7 के आसपास का नंबर आएगा. अगर आप चाहते तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके, क्योंकि फार अपार्ट नंबर्स हैं, तो आप उसको कर सकते हैं. 12 into 12 144. तो उससे 12 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, 13 नहीं, लेकिन 12.5 12.7 के आसपास. ठीक है, होप दैट मेक्स सेंस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, व्हिच इज टॉकिंग अबाउट इन व्हिच ईयर द सेविंग रेट वाज द हाईएस्ट. सेविंग रेट वाज हाईएस्ट. सेविंग रेट का हमको एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है. सेविंग रेट का फॉर्मूला है सेविंग अपॉन सैलरी. ठीक है, लेट अस राइट इट समवेयर दैट सेविंग रेट इज सेविंग अपॉन सैलरी इनटू 100. ओके, नाउ एक अच्छी चीज ये हुई है, हमको सेविंग्स भी पता है और हमको सैलरी भी पता है. तो लेट्स डू वन थिंग टू मेक माई लाइफ इजियर. ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. ऑल्दो दिस tabulation is not required, but just to make my life a little easy, I'm doing this tabulation. ठीक है, so saving and over here is salary. So please recall, savings was 25, 25, 5 and ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, और सैलरी वाज 150, 155, 135 और क्या था, दैट वाज 170. ये भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये वैल्यूज को कैलकुलेट किया था. ठीक है, सो बेसिकली अब हमको सिर्फ इतना करना है कि अब हमें कंपैरिजन करना है. किसका, हमें कंपैरिजन करना है सेविंग अपॉन सैलरी का. दैट इज 25 by 150, 25 by 155, 5 by 135 एंड 15 by 170. ठीक है, इनका हमें कंपैरिजन करके हाईएस्ट कौन है ये बताना है. अब एक चीज देखिए, ये दोनों नंबर में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर ये ज्यादा है. दैट मींस दिस इज आउट कंप्लीटली. ईयर 2 इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. तो पहले इसको एलिमिनेट कर देंगे. कैसे, इसका बेसिक एग्जांपल ये है कि 1/2 इज 50%, 1/3 इज 33.33%. दैट मींस अगर सेम न्यूमरेटर पे अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा. हमसे क्या बोला था, हमसे हाईएस्ट वैल्यू निकालने बोला था. तो अगर हाईएस्ट वैल्यू निकालने बोला है, दैट मींस हम ईयर 2 को कंसिडर नहीं करने वाले. ठीक है, सो आई वुड मच रादर दैट यू पुट अ क्रॉस ओवर देयर. ठीक है, इसको गंदा मत करिए, मेरी आदतें मत पिकअप करिए. अब हमें तीन नंबर्स को कंपेयर करना है, 25 by 150, 5 by 135 एंड दिस. 25 by 135, 5 are 5 2s are 5 3s are 15, 3s are 15, 0, 1/6. So this comes out as 1/6. ये 16.67 है.
then 5 upon 135, that is 27, so this is 1 upon 27. so अगर मैं 1 upon 25 ले लूं तो 4, ठीक है, ये उससे ज्यादा यानी कि 4 से भी कम होगा, अप्रोक्सीमेटली 3 2 इस तरह के आसपास का कोई नंबर होगा, 3% 2%. सो इफेक्टिवली दिस इज आल्सो आउट. देन अगेन 15 by 170, 5 से काट दीजिए डायरेक्टली, 5 3s and 5 2s are 10, 3s are 15 rather, 3s are 15 and 4s are 30. अगर ये 33 होता तो ये 11 से काट देता, दैट इज 9.09 के आसपास, बट न्यूमरेटर इज मोर, सो अ लिटिल लेस देन 9.09. इन तीनों नंबर्स में 1/6 इज हाइयर. दैट मींस कि मेरा जो ये वाला नंबर है, ईयर 1 का नंबर है, दैट इज माय हाईएस्ट इन ऑल दीज ईयर्स. ठीक है, जो मेरा सेविंग रेट था. लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. सो माय आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1. बाय एलिमिनेशन वी हैव एलिमिनेटेड द अदर 2 ऑप्शंस. Now, I just want to let you guys know that these are very easy question type for anybody to solve. लेकिन ये confidence booster questions होते हैं. ये आपको overall बहुत help करेंगे जब आप अपने आप को better करने की कोशिश कर रहे हो टेस्ट टेकिंग में. इन टेस्ट को देना बहुत जरूरी होता है. I hope I have made my point. Now, if you are looking for classes, get in touch. ठीक है, मैं भी जिस तरह से एक अच्छे स्टूडेंट को एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है, उसी तरह अच्छे टीचर्स को अच्छे स्टूडेंट्स की जरूरत होती है. तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, कॉन्टैक्ट करिए. ठीक है, बाय.